السلام علیکم ناظرین، عید کی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ امید ہے آج آپ نے ایک اچھے انداز میں جو عید کا سلسلہ ہے وہ گزارا ہوگا، اور قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ کل بھی جاری رہے گا اور اس سے اگلے دن بھی جاری رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس سارے سلسلے میں اپنے آس پاس لوگوں کو بھی شریک کریں اور خوشیاں بانٹیں، مسکراہٹیں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ان خوشیوں کے لمحات میں ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو ہمیشہ ان خوشیوں میں کسی بھی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو کوشش کریں ان کو بھی شریک کریں۔ تو آج جس طرح ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ دن بھر جاری رہا، ہم نے آج کوشش کی عید کے حوالے سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے ملتان کے سعود پنجاب کے جو باسی ہیں وہ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو شام کا وقت ہے، تو ہم نے سوچا کہ عید کی خوشیوں کو مزید دوبالا کریں، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم عید کی شام میں اپنے اس خطے کے جو نامور شعراء کرام ہیں ان کو بلائیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ عید کے دن اپنا ٹائم نکالیں شام کے وقت، تو وہ ہماری درخواست پہ آئے۔ اور آج ہم اس حوالے سے ایک خوبصورت مشاعرے کا بھی انعقاد کریں گے اور شاعری بھی سنیں گے، اور اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ سب اس سے محظوظ بھی ہو سکیں، اور جو عید کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ایک یادگار ایونٹ کا اضافہ ہو جائے۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے اس خطے کی پہچان ہے اور ہمارے ملک کے معروف شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، خالد مسعود خان صاحب، وہ اس مشاعرے کی صدارت بھی کریں گے، اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس میں اس کو آگے لے کے بھی چلیں۔ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا خالد مسعود خان صاحب، سب سے پہلے عید کی بھی بہت بہت مبارک۔ آپ کو سب کو مبارک ہو۔ اور عید کے دنوں میں شعراء کرام کا بیٹھ جانا، وہ بھی شام کے ٹائم اپنی مصروفیت کو چھوڑ دینا۔ نہیں دیکھیں، مشاعرہ ہو تو عید کا دن چھوڑ، میں کہتا ہوں کہ شاعر قیامت والے دن بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اب موقع ہونا چاہیے، موقع ہونا چاہیے، اور دوستوں کا مل بیٹھنا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آج ہم بیٹھے ہیں، مل بیٹھے ہیں، عید کی خوشیاں ہم سیلیبریٹ کریں، ہمارے ساتھ کافی سارے باقی مہمان بھی موجود ہیں، تو آپ کی جو شاعری ہے، مزاحیہ شاعری سے کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو میں باقی مہمانوں کا تعارف بعد میں کروں گا، لیکن پہلے آغاز میں کوئی شعر سنوں گا۔ دیکھیں وہ عید کے حوالے سے شاکر ایک شعر ہے کہ جو مہنگائی کا عالم ہے، ظاہر ہے یہ قربانی والی عید ہے، تو اس میں یہ تھا کہ وڈی عید پہ سودا کیا ہے سستا نالے سچا۔ واہ واہ، کیا بات! وڈی عید پہ سودا کیا ہے سستا نالے سچا، 1.5 لاکھ کا بکرا آیا کوکڑ سے گیٹ اونچا۔ 1.5 لاکھ کا بکرایا، کوکڑ سے گیٹ اونچا۔ اور یہی چال ہم نے اس سے پہلے منڈی میں۔ اچھا، وہ اس سے شاکر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اس واقعے کے راوی مرحوم اختر شمار تھے، تو لاہور میں ایک، اب میں وہ واقعہ کہاں کا ہے اس پہ میں ابھی پردہ رکھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ کسی شاعر کا ہی گھر تھا، تو انہوں نے وہ قربانی والے دن تو دوستوں کو بلایا تھا کہ آئیں، تو وہاں پہ قربانی ہوگی، پھر اس قربانی کے بعد کھانا پینا ہوگا۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مشاعرے میں، تو وہ جو سین تھا اس میں اس طرح کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے عزیز جو تھے، رشتہ دار اور کچھ اور لوگ، شاعر دوست، سارے یہ اکٹھے تھے، تو بندر سے بکرا لایا گیا۔ وہ اختر شمار، اللہ اس کو ذریعہ رحمت کرے، وہ کہتے ہیں جی وہ بکرا بالکل، مطلب جسے کہتے ہیں کہ بکرے کی سٹپ نہیں تھی کوئی۔ ہاں جی، بکرے بالکل چھوٹا سا تھا۔ کہتا ہے اس کو جب دیکھا تو جو مطلب جو قربان کرنے والے تھے ان کے کزن نے اچانک ان سے پوچھا، کہتا ہے بھائی رات اس کو بلی نہیں پڑی؟ کیا بات! کیا کر یہ میں دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے کہ عید میں وہ کہتے ہیں کہ عید نماز کے لیے جو پہلے ایک رواج ہوتا تھا وہ عام مسجد میں نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے شہر سے باہر ایک بڑی جگہ پہ اجتماع ہوتا تھا، کھلے میدان میں۔ اچھا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ صرف یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، وہ اجتماعیت کا ایک تصور پیدا ہو، اور ایک بڑی سوشل گیدرنگ ہو۔ تو جو یہ عید ہے یہ بنیادی طور پہ ایک سوشل گیدرنگ ہے، میں سمجھتا ہوں مذہبی فریضے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ یہ آپ کو بہت سے لوگ آپ کو عید نماز پہ ایسے ملتے ہیں جن سے اب عام دنوں میں ملاقات نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مل بیٹھنا
उसी जो एक कॉन्सेप्ट है, ये उसी का एक स्टेप है कि हम अब सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और खुशी, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो गमी है उसके लिए लोगों का आपके साथ होना ज़रूरियत है कि आपका गम शेयर करें, और खुशी के लिए लोगों का होना ज़रूरियत है कि आप अपना खुशी उनके साथ शेयर करें। आप अपनी जो खुशी है वो शेयर कर सकें। इंतहाई खूबसूरत बात। मतलब गम के लिए किसी का कंधा चाहिए और खुशी के लिए किसी का मतलब सीना चाहिए, मतलब जिससे मिले। शहर का हम आगाज़ करते हैं। आपको पहले मेहमानों का भी तारुफ कराते हैं। हमारे साथ वो शुराए कराम मौजूद हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस खित्ते की पहचान भी हैं, और उन्होंने जो शायरी की उसको काफ़ी हमेशा सराहा जाता है, और वो हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, और जो नए आने वाले शोरा हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं। तो पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं शायरा हैं सहर सियाल साहबा, ज़रा हम उनके पास जाएंगे। मैडम, आपको सबसे पहले ईद की मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगा कि आज आप टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई। उनके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद मुख्तार अली साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और उनके साथ जो हमारे तीसरे मेहमान मौजूद हैं सराइकी शायर हैं अब्बास मलिक साहब। अब्बास मलिक साहब, आपका शुक्रिया, ईद बहुत मुबारक तो खैर मुबारक। उनके साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं शाहिद मलिक साहब। शाहिद मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद, ईद की बहुत बहुत मुबारक है। और हम अपने मेहमानों को मज़ीद तारुफ कराते चलें। सुहेल आबदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। आप सब आपका शुक्रिया, ईद मुबारक। और उसके साथ साथ कमर रज़ा हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं कमर रज़ा शहजाद साहब, सर आपको भी खुशामदीद और इस हवाले से ईद की मुबारकबाद। इस महफिल को सजाने में सबसे जो बुनियादी रोल हमेशा से रहा रहता है, और अदबी महफिलों को सजाने में हमेशा सबसे पहले नंबर पे रहते हैं और काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं शाकिर हुसैन शाकिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद और ईद की मुबारकबाद। शाकिर साहब है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये जो मुल्तान में अदब का गुलिस्तान है, ये उसके बागबान है यकीनन। और यकीनन हम देखते भी हैं कि और यकीन सब तहीद करें, हम देखते भी हैं कि अदब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनकी इस हवाले से कंट्रीब्यूशन। हम ज़रा आएंगे सैयद सियाल साहब के पास। ईद का मौका है और खुशियों के लम्हात हैं और सारे शुरा भी इकट्ठे हैं। खालिद मसूद खान साहब ने आगाज़ कर दी है, इजाज़त भी दे दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? सब तो पहले तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक और तारी इजाज़त नाल ईद के हवाले नाल कुछ अशार हैं। गिद्दी खाली अपनियां बही खड़ियां, गिद्दी खाली अपनियां बही खड़ियां, चाती अखियां विच कई शई खड़ियां। वाह 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 वाह। गिद्दी खाली अपनियां बही खड़ियां, चाती अखियां विच कई शई खड़ियां, चन ईद दा देख ख्याल आए एक बिया भी साल वंजई खड़ियां। वाह वाह वाह, क्या बात है। गिद्दी खाली अपनियां बही खड़ियां, चाती अखियां विच कई शई खड़ियां, चन ईद दा देख ख्याल आए एक बिया भी साल वंजई खड़ियां। ते मेरे वेहड़े विच मच खुशबोई गैन, मेरे वेहड़े विच मच खुशबोई गैन, तेरे नां दी मेहंदी लई खड़ी। वाह हाय वाह 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 वाह। मेरे वेहड़े विच मच खुशबोई गैन, तेरे नां दी मेहंदी लई खड़ियां, ते तेरे आवण दी कोई दस गै नहीं। वाह। तेरे आवण दी कोई दस गै नहीं, मैं वत भी सुध वंजई खड़ियां। तेरे आवण दी कोई दस गै नहीं, मैं वत भी सुध वंजई खड़ियां, ते मेरे मत्थे टिक्का चन्न दा है, मेरे मत्थे टिक्का चंद मेरे है। मत्थे वाह टिक्का चन्न दा है, मैं अपनी ईद सुहाई खड़ियां। वाह वाह वाह। मेरे मत्थे टिक्का चन्न दा है, मैं अपनी ईद सुहाई खड़ियां, ते बस ईद सहर मेरी इया है। खालिद साहब, बस ईद सहर मेरी इया है, मैं नवे कपड़े पई खड़ी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। बस ईद सहर मेरी इया है, मैं नवे कपड़े पई खड़ियां। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। मैडम सैयद सियाल साहब आपका शुक्रिया। हम नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से रोही वापस चैनल का भी बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद हम आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम ईद के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हम मज़ीद बात करेंगे। खालिद मसूद खान साहब, जिस तरह महफिल सजी हुई है और जिस तरह भी हमारे साथ सैर सियाल साहब मौजूद थी, उन्होंने कलेजी का जिक्र किया था
تو ہر شاعر کی اپنی پسند جانوروں میں بھی وہ کچھ ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے, یہ چیز پسند ہے. دیکھیں مطلب پسند ناپسند تو وہی بات ہے, اپنی اپنی ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عید والا دن ہے نا, اس روز مشاعرہ رکھنا ویسے کافی رسک کی بات ہے. وہ اس لیے کہ شاعر تو کھا پی کے آیا ہوتا ہے تو چارج ہوتا ہے بہت زیادہ, مطلب اس کا انرجی لیول اس کا انکریز ہوتا ہے. اچھا لیکن اب یہاں پہ سامعین تو ہے نہیں, تو ہم ہی شاعر ہیں, ہم ہی سامعین ہیں, اور سامعین پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مطلب ادروائز بھی ہو سکتا ہے کہ اس جسے کہتے ہیں کہ کھایا ہو بندے نے تو چارج بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ خمار بھی طاری ہو سکتا ہے. تو میری صرف یہ تمام جو شاعر پلس سامعین ہیں جو 2 in 1 ہیں اس وقت, تو ان سے صرف یہ درخواست ہے کہ وہ کھانا تو کھا کے آئے ہیں ظاہر ہے, تو اس پر انہوں نے خماری طاری نہیں کرنی, اس میں جاگتے رہنا ہے. وہ شاکر وہ ایک چناب کلب کا مشاعرہ تھا فیصل آباد کا, مطلب میں اس میں خود تھا, تو اس میں یہ ہوا کہ کھانا پہلے چل گیا. کہ سامعین کی بھی 2 اقسام تھی, ایک تو یہ کہ کھانا کھا کے گھر چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے یہ ضرور ایک شرافت دکھائی کہ انہوں نے کہا بھائی جان ہم اب جا رہے ہیں, چلے گئے. انہوں نے دھوکہ تو نہیں دیا نا, اب دھوکہ دیا انہوں نے جو موجود رہے, وہ سارے کھانے کے بعد ان پہ خماری طاری ہو گئی. اللہ جنت نصیب کرے, اعزاز آذر اس مشاعرے کے میزبان تھے, کنڈکٹ کر رہے تھے اس کو, نقیب مشاعرہ تھے. تو مشاعرہ مطلب سامعین سوئے پڑے ہیں, سامعین سوئے ہوں تو مشاعرہ کیسے جاگ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں درخواست کروں گا خالد مسعود صاحب سے کہ وہ آئیں اور مشاعرے کو اٹھائیں. میں آیا, میں نے مشاعرے کو دیکھا, اپنی اوقات کو دیکھا, پھر میں نے کہا اعزاز صاحب آپ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے. میں پھر پنجابی میں کہا, میں نے کہا جی اس مشاعرے نو اللہ ہی چکے تے چکے, بندہ نہیں چک سکتا. تو امید ہے کہ اس مشاعرے کو انشاءاللہ ہم ہی اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان محمد مختار علی صاحب موجود ہیں. سر آپ عید کا موقع ہے, کیا کہنا چاہیں گے, اور ذرا اپنی شاعری کے حوالے سے بتائیے. جی سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک. اور یہ ہے کہ عید کی خوشیاں بانٹنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ عیدی دیں, اور جو گوشت کھایا ہے اس کو یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ ہم دوسروں میں بانٹ کر اس سے لطف اندوز ہوں. جتنا ہم زیادہ بانٹیں گے اتنا ہی ہم کو اس کا فائدہ ہوگا. تو یعنی یہ تو بالکل ایک اچھا پیغام ہو گیا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شعراء حضرات, ہم کوئی عشق پہ, محبت پہ, کوئی غم پہ, ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے, وہ شاعری کرتا ہے, وہ لکھتا بھی ہے اور اس پہ بات بھی کرتا ہے. آپ کا انتخاب کیا تھا؟ دیکھیے فوکس رہا عشق کے ساتھ غم کا اور خوشی کا دونوں کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شاعر ہے وہ ہر طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے, اور اس کے شعروں میں تمام کیفیات پائی جاتی ہیں. تو بہرحال بنیادی چیز یہ ہے کہ عشق کیا جائے, اور اس میں غم ملے یا خوشی یہ آپ کے نصیب کی بات ہے. اچھا وہ عشق سے یاد ہے کہ یوسفی صاحب کہتے ہیں, یوسف نے لکھا نا کہ ہم نے مرزا سے پوچھا کہ عشق شادی سے پہلے کرنا چاہیے یا شادی کے بعد, تو مرزا نے کہا کہ میاں عشق شادی سے پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے, تاہم اس کی خبر بیگم کو نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. تو کچھ کلام ہمیں ہمارے جی میں سامعین پیش کو کرتا ہوں. پہلے ایک مطلب پیش کرتا ہوں شاکر بھائی, خالد بھائی آپ کی اجازت سے, کہ گلی میں جب تلک وہ خوش لباس آتا نہیں ہے, گلی میں جب تلک وہ خوش لباس آتا نہیں ہے, کوئی منظر بھی ان آنکھوں کو راس آتا نہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. گلی میں جب تلک وہ خوش لباس آتا نہیں ہے, کوئی منظر بھی ان آنکھوں کو راس آتا نہیں ہے, اور اتر جاؤ سبھی اے غم زدو آنکھوں میں اس کی. واہ, اتر جاؤ سبھی اے غم زدو آنکھوں میں اس کی, کوئی بھی لوٹ کر جن سے اداس آتا نہیں ہے, کوئی بھی لوٹ کر جن سے اداس آتا نہیں ہے. اور شعر پیش ہے کہ سبھی خوش منظری پوشیدہ ہی رکھتا ہے وہ بھی, واہ, سبھی خوش منظری پوشیدہ ہی رکھتا ہے وہ بھی,
मेरी आंखों में जब तक इल्तिमास आता नहीं, मेरी आंखों में जब तक इल्तिमास आता नहीं है। और इश्क की बात हो रही थी तो देखिए इश्क का शेर आया है कि अजब आसूदगी है इश्क के मलबूस में भी, अजब आसूदगी है इश्क के मलबूस में भी, मगर ये पैरहन हर एक को रास आता नहीं। वाह 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 वाह। अजब आसूदगी है इश्क के मलबूस में भी, मगर ये पैरहन हर एक को रास आता नहीं है। और इस गज़ल का मक़ता है कि सफ़र और जुस्तजू से तशनगी मिटती है मुख्तार, सफ़र और जुस्तजू से तशनगी मिटती है मुख्तार, कुआं चल कर कभी प्यासे के पास आता नहीं, वाह 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 वाह। कुआं चल कर कभी प्यासे के पास आता आता नहीं नहीं है। आप सबकी समात का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे अब्बास मलिक साहब के पास। अब्बास मलिक साहब, ईद की खुशियों के मौके पर सराइकी में अपना कलाम। सही बिल्कुल। सब तो पहले तो मैं सारे वसेब को ईद मुबारक पेश करे सा। खैर मुबारक। तैयारी कर दियो। अच्छा वल गाल के सारे जेड़े सज्जन बैठे सारे हुणे बड़े सोहने गाल कहंदे बिन खाल महसूस सही बड़े दिल खुश थींदा पे क्योंकि गोश्त तो सारे सज्जन खा के आइन ते इंशाल्लाह गोश्त अजा दौर चलसे 2-3 दिन तो इंशाल्लाह कई लोग हैं उसके बाद भी यार जाते हैं। ईद है सही और एक फ्रीजर जिंदाबाद महीना चलता है। मैं चलता रही सही एक हाँ जी थोड़ा जो अच्छा कि वल सजनो ईद द ॾींहुं आ गए, वल सजनो ईद द ॾींहुं आ गए लख शुक्र मनाऊं है ईद द ॾींहुं, वल सजनो ईद द ॾींहुं आ गए लख शुक्र मनाऊं है ईद द ॾींहुं, अज बख्त जिहाड़ा दान थिया अज जशन मनाऊं है ईद द ॾींहुं, पा जोड़े प्यार परीतां दे अज प्यार वधाऊं है ईद द ॾींहुं, अब्बास मुकऊं अज सब जहिड़े रुठे यार मनाऊं है ईद द ॾींहुं। वाह 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 वाह। बड़ी मेहरबानी साईं। अज ईद द सोना ॾींहुं आ गए रल खुशियां चेसूं ईद होसी, अज ईद द सोना ॾींहुं आ गए रल खुशियां चेसूं ईद होसी, जिवें पाक नबी फरमाया है उवें ईद मनेसूं ईद होसी। वाह वाह वाह। जी मेहरबानी साईं। वल सजणो ईद द ॾींहुं आ गए रल खुशियां चेसूं ईद होसी, जिवें पाक नबी फरमाया है उवें ईद मनेसूं ईद होसी, बेहाल यतीम गरीबां दी इमदाद करेसूं ईद होसी, अब आसी चस वाल ईद मनावां दी रुठे यार मनेसूं ईद होसी। वाह 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 वाह। बड़ी मेहरबानी साईं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद यहीं से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने ब्रेक से पहले अब्बास मलिक साहब की शायरी सुनी तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अब्बास साहब। हम जरा उनके पास रहेंगे। शाहिद अब्बास साहब, सबसे पहले ईद की मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है दिन अच्छा गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया आप वक्त निकाल के हमारे पास आए और इस मुशायरे में शामिल हुए। हमें तो याद नहीं हमने कब मनाई ईद, वाह 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 वाह। हमें याद तो नहीं। याद नहीं कब मनाई ईद, हमने कब मनाई ईद, तुम्हारे बाद कहाँ जिंदगी में आई ईद। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सवाल सवाल। हमें तो याद नहीं हमने कब मनाई ईद, और तुम्हारे बाद कहाँ जिंदगी में आई ईद, और वही उदासी का आलम वही मताए अलम, वही उदासी का आलम वही मताए अलम, हमारे हाल को देखा तो मुस्कुराई। वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत वही उदासी का आलम वही मताए अलम, हमारे हाल को देखा तो मुस्कुराई, और ये चांद निकला तो याद आ गए सफ़ीर हुसैन, वाह। ये चांद निकला तो याद ये आ गया। चांद निकला तो याद आ गए सफ़ीर हुसैन, पयामे माहे मुहर्रम को साथ लाई ईद, पयामे माहे मुहर्रम को साथ लाई ईद, और ये मुजदा अहले फ़लस्तीन को सुना सकता, ये मुजदा अहले फ़लस्तीन को सुना सकता,
वो देखो पास तुम्हारे भी चल के आई ईद, हमें तो याद नहीं हमने कब मनाई ईद, वाह वाह, तुम्हारे बाद कहाँ जिंदगी में आई ईद। बहुत खूब हमारे साथ मौजूद थे शाहिद अब्बास साहब। वही उदासी का आलम, वही मताए अलम, हमारे हाल को देखा तो मुस्कुराई ईद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम कैस साहब। सर आपको शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ईद का खुशगवार मौका है, सारे शोरा कराम भी इकट्ठे हैं और खूबसूरत तरीके से मुशायरा जारी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की वसातत से अपनी तमाम शायर बिरादरी को और पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि कहा जाता है कि जो ईद है ये पैगाम देती है कि हमें जो है अपनी खुशियों को अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए कि ये ईद ही है कि जहाँ पर जो है हम अपनी जो खुशियाँ अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं तो उससे जो है हमारे मुआशरे में खूबसूरती आती है। तो एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि रगों में मौजे बलाखेज़ आज़माते हैं, रगों में मौजे बलाखेज़ आज़माते हैं, हम आज हाले गमे दिल उन्हें सुनाते हैं। रगों में मौजे बलाखेज़ आज़माते हैं, हम आज हाले गमे दिल उन्हें सुनाते हैं। उदासियों की घनी रात की मसाफत में, उदासियों की घनी रात की मसाफत में दियारे चश्म से जुगनू निकल के आते हैं। वाह 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 वाह। उदासियों की घनी रात की मसाफत में, उदासियों की घनी रात की मसाफत में दियारे चश्म से जुगनू निकल के आते हैं। हवा पे नक्श भी करते हैं दोस्ती तेरी, आहा क्या बात। हवा पे नक्श भी करते हैं दोस्ती तेरी, तुम्हारा नाम भी हर एक से छुपाते हैं। वाह वाह वाह। हवा पे नक्श भी करते हैं दोस्ती तेरी, तुम्हारा नाम भी हर एक से छुपाते हैं। और सुना है आज की शब शहर में चरागा है, आहा क्या बात, क्या सुना है आज की शब शहर में चरागा है, चलो सलीम कोई दागे दिल जलाते हैं। वाह 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 वाह। सुना है आज की शब शहर में चरागा है, सुना है आज की शब शहर में चरागा है, चलो सलीम कोई दागे दिल जलाते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम कैसर साहब, आप हमारे पास आए। हम सर आएंगे सैयद सुहेल आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद सुहेल आबदी साहब, सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खूबसूरत महफिल सजी हुई है और आपने सारे कलाम माशाल्लाह सुने और सब इसको दाद भी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पर और क्या कलाम सुना? क्या कहें, ईद मुबारक के मुकद्दर अपना। वाह वाह वाह। क्या कहें ईद मुबारक के मुकद्दर अपना, बिखरा बिखरा है किसी जुल्फ़े परेशान की तरह। वाह वाह। क्या कहें ईद मुबारक के मुकद्दर अपना, बिखरा बिखरा है किसी जुल्फ़े परेशान की तरह, चाँद निकला है मगर हल्का मातम बनकर, ईद आई है मगर शाम गरीबा की तरह। तो ये तो फ़लस्तीन भाइयों के लिए मैंने उनका हवाला दिया उनको। जी तो उनको याद करना चाहिए। तो एक गज़ल के चंद अशार के, याद करता हूँ कभी सोच कभी साज के साथ। खालिद भाई, याद करता हूँ कभी सोच कभी साज के साथ, जिन फ़ज़ाओं में पला हूँ मैं बड़े नाज के साथ। वाह वाह वाह। और अगले ही रोज़ वो अखबार में छप जाती है, अगले ही रोज़ वो अखबार में छप जाती है, हम तो जो बात भी करते हैं कहीं राज के साथ। वाह वाह वाह। अगले ही रोज़ वो अखबार में छप जाती है,
हम तो जो बात भी करते हैं कहीं राज के साथ। राजदार बदले अपने। शाकिर भाई, चंद कमज़ोर परिंदों को बचाने के लिए, हाय हाय हाय, चंद कमजोर परिंदों को चंद बचाने के लिए, कमज़ोर परिंदों को बचाने के लिए मैं फ़ज़ाओं में बहुत देर लड़ा बाज के साथ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, चंद क्या बात है, कमज़ोर क्या बात है। परिंदों को बचाने के लिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चंद कमज़ोर परिंदों को बचाने के लिए मैं फ़ज़ाओं में बहुत देर लड़ा बाज के साथ। और शाकिर भाई के फिर भला कौन सदा मेरी दबा सकता है। हाँ हाँ, क्या बात। फिर भला कौन सदा मेरी दबा सकता है, तू जो आवाज़ मिला दे मेरी आवाज़ आवाज के साथ। फिर भला कौन सदा मेरी दबा सकता है, तू जो आवाज़ मिला दे मेरी आवाज़ के साथ। मैंने लिखा ही नहीं अपने लिए आज तलक, मैंने लिखा ही नहीं अपने लिए आज तलक एक भी हर्फ कहीं ख्वाहिश एजाज के साथ। जानता हूँ जिन्हें उड़ना नहीं आता है सुहेल, जानता हूँ जिन्हें उड़ना नहीं आता है सुहेल, बुग़्ज़ रखते हैं वही बस मेरी परवाज़ के साथ। वाह वाह वाह। याद करता हूँ कभी सोच कभी सांस के साथ, और चंद कमज़ोर परिंदों को बचाने के लिए मैं फ़ज़ाओं में बहुत देर लड़ा बाज के साथ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद सुहेल आबदी साहब। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मज़ीद आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुशायरे की जान जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे को सजाने में अपना बुनियादी किरदार अदा किया और हर अदबी महफिल को भी सजाने में पेश रहते हैं, शाकिर हुसैन शाकिर साहब। शाकिर साहब, आपको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत मुझे शुक्रिया, याद है आपको भी हो। 2-3 साल पहले आपने इस तरह की महफिल सजाई थी अपने घर, तो जी। इस बार हमने दोबारा आपको कहा तो आपने फिर एहतमाम किया, तो हमें असल काफ़ी में अच्छा लगा। इसमें आर्ट्स काउंसिल ने भी ताउन प्रोग्राम किया। तो ये था कि टी हाउस में करते, तो टी हाउस में फिर सोचा कि वहाँ पर ऐसी कोई माहौल नहीं था कि किस तरह करते, तो फिर सलीम कैसर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ आ जाएँ। तो आज हम आर्ट्स काउंसिल बैठे हुए हैं और ईद वाले दिन आर्ट्स काउंसिल भी है, वैसे शहरी दोस्त भी भी हैरान होंगे कि ईद वाले दिन भी आर्ट्स काउंसिल ओपन आप है और कमाल करते हैं। आप इनको वही बात खालिद भाई वाली बात कि क़यामत वाले दिन बुला लें, ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये कुछ टिकने वाले हैं घरों में, इनको मुशायरा मिलना चाहिए। आप इनको गोश्त दें या ना दें, ईदी दें या ना दें, मुशायरा दे दें बस, और फिर देखें ये कैसे खुश होते हैं। अब देखें कोई मतलब आज के दिन को उदास बैठा है, यहाँ सारे खुश बैठे हैं। हम आपसे कलाम सुनना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी ये गज़ल के ख्वाहिशमंद चंद होंगे इस अशार हैं कि हर एक लब पे मेरा तज़किरा ज़रूरी है। खालिद भाई, हर एक लफ्ज़ हर पर एक लब पे मेरा तज़किरा ज़रूरी है, मोहब्बतों में कोई मौज़ा ज़रूरी है। हर एक लब पे मेरा तज़किरा ज़रूरी है, मोहब्बतों में कोई मौज़ा ज़रूरी है, और अना को ठेस तो पहुँचेगी फिर भी रास्ते में, अना को ठेस तो पहुँचेगी फिर भी रास्ते में, पलट के उसकी तरफ देखना ज़रूरी है। वाह वाह वाह, अना वाह। को ठेस तो पहुँचेगी फिर भी रास्ते में, पलट के उसकी तरफ देखना ज़रूरी है, और जिसे ये ज़िद थी मोहब्बत में फासला न रहे, जिसे ये ज़िद थी मोहब्बत में फासला न रहे, वो कह रहा है कि अब फासला ज़रूरी है। जिसे ये ज़िद थी मोहब्बत में फासला न रहे, वो कह रहा है कि अब फासला ज़रूरी है। और खालिद भाई देखिएगा कि फसाने में नहीं है तज़किरा बिछड़ने का, वाह, फसाने में नहीं है तज़किरा बिछड़ने बिछड़ने का, और उसमें एक यही वाक़या ज़रूरी है, वाह वाह वाह। और उसमें एक यही वाक़या ज़रूरी है। कमर भाई, तो आप तो हम बैठते हैं ना कि वो चांदनी में निकलता है मेरे घर की तरफ, वो चांदनी में निकलता है मेरे घर की तरफ, सो चांद ढलने तलक जागना ज़रूरी है। वो चांदनी में निकलता है, वो चांदनी में निकलता है मेरे घर की तरफ, सो चांद ढलने तलक जागना ज़रूरी है, मोहब्बतों में कोई मौज़ा ज़रूरी है।
हर एक लब पे मेरा तज़किरा ज़रूरी है, मोहब्बतों में कोई मुआज़ा ज़रूरी वाह है। वाह, बहुत शुक्रिया शाकिर हुसैन शाकिर साहब। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं कमर रज़ा शहजाद साहब। शहजाद साहब, आज के मौके पर पहले तो ईद की मुबारकबाद। हम देख रहे थे कि आप मौजूद हैं और कुछ कलाम हमें सुनाएं, और क्योंकि आप आखिरी हमारे मेहमान हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन रिमार्क्स की तरफ जाएंगे खालिद मसूद खान साहब के पास। रहनी ही नहीं खाक पे जब ज़ात हमारी, वाह रहनी ही नहीं खाक पे जब ज़ात हमारी, देखेगा यहाँ कौन फतूहात हमारी। वाह वाह, रहनी ही नहीं खाक पे जब ज़ात हमारी, देखेगा यहाँ कौन फतूहात हमारी। और खालिक से कोई बात भी कहते नहीं हम लोग, वाह खालिक से कोई बात भी कहते नहीं हम लोग, ढल जाती है अश्कों में मनाजात हमारी। वाह 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 वाह, खालिक से कोई बात भी कहते नहीं हम लोग, ढल जाती है अश्कों में मुनाजात हमारी। और बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, मुमकिन है पहुंच जाए कहीं बात हमारी। वाह 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 वाह, बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, मुमकिन है पहुंच जाए कहीं बात हमारी। बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, मुमकिन है पहुंच जाए कहीं बात हमारी। और हम जैसे फ़कीरों को कहाँ इसकी खबर है, हम जैसे फ़कीरों को कहाँ इसकी खबर है, किसने लगाई है यहाँ घात हमारी। वाह वाह, हम जैसे फ़कीरों को कहाँ इसकी खबर है, किसने लगाई है यहाँ घात हमारी। आ जाएंगे एक रोज़ तेरे काम अगरचे, आ जाएंगे एक रोज़ तेरे काम अगरचे, तिनके से ज़्यादा नहीं औकात हमारी। वाह वाह वाह, आ जाएंगे एक रोज़ तेरे काम अगरचे, आ जाएंगे एक रोज़ तेरे काम अगरचे, तिनके से ज़्यादा नहीं औकात हमारी। हम लोग उठाए हुए फिरते हैं मोहब्बत, वाह, हम लोग उठाए हुए फिरते हैं मोहब्बत, आ जाइए ले जाइए सौगात हमारी। वाह 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 वाह, हम लोग उठाए हुए फिरते हैं मोहब्बत, हम लोग उठाए हुए फिरते हैं मोहब्बत, आ जाइए ले जाइए सौगात हमारी। और बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, मुमकिन है पहुंच जाए कहीं बात। वाह वाह बहुत वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये शायरी आपने सुनी, हम जरा आएंगे खालिद मसूद खान साहब की तरफ। खालिद मसूद खान साहब, आखिर में हम आपकी शायरी सुनना चाहेंगे। मैं पहले तो एक आपको ताज़ा एक कथा, बल्कि ये तीन अशार या 6 मिसरे के पिंडा नीला हो गया क्योंकि फांट पड़ी थी। पिंडा नीला हो गया क्योंकि फांट पड़ी थी, उनके एंकर कहते थे कि नील गिरा है। भाई अच्छा है भाई बहुत अच्छा, क्या बात है कि नील गिरा है, मतलब मार से नहीं ये नीला हुआ है, नील गिर गया था ऊपर। गिर गया है। पिंडा नीला हो गया क्योंकि फांट पड़ी थी, उनके एंकर कहते थे कि नील गिरा है। राती ख्वाब में दूर दराडे ठाका सुनकर फील हुआ कि जैसे कोई फील गिरा है। राती ख्वाब में दूर दराडे ठाका सुनकर फील हुआ कि जैसे कोई फील गिरा है। तड़के उठकर हमको ये मालूम हुआ कि राती वो कोई फील नहीं राफील गिरा। वाह 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 वाह, देखें जी, ये बड़े बड़े दिनों के बाद कोई ऐसा हुआ कि हम सर उठा के चलने के काबिल हुए। और एक कथा कि कहानी में हमारे बादशाहों के सभी मसले, कहानी में हमारे बादशाहों के सभी मसले ख़त्म होते थे बिल आखिर फ़कीरों की दुआओं से। कहानी में हमारे बादशाहों के सभी मसले ख़त्म होते थे बिल आखिर फ़कीरों की दुआओं से। हमारे आजकल के सारे मसले ख़त्म होते हैं अरब के बादशाहों और अमीरों की दुआओं से। वाह वाह वाह, कमाल
वाह अच्छा, एक गज़ल बिल्कुल ताज़ा गज़ल है कि हालांकि वो पड़ा हुआ था हाथ धोकर माहीन के पीछे, वाह हालांकि हालांकि वो काफी का जवाब नहीं। हालांकि वो पड़ा हुआ था हाथ धोकर माहीन के पीछे, मुंह धोकर माहीन जब आई टुर गया वो समरीन के पीछे। वाह हालांकि वो पड़ा हुआ था हाथ धोकर माहीन के पीछे, मुंह धोकर माहीन जब आई टुर गया वो समरीन के पीछे। बैकअप में एक अद महबूबा रखना चाहिए हर आशिक। भाई बहुत अच्छा, क्या जबरदस्त मशवरा। बैकअप में एक आध महबूबा रखनी चाहिए हर आशिक को पड़ जाना चाहिए इकट्ठे ही 2-3 के पीछे, और लूर लूर वो फिरता रहता है हर वेले कुड़ियां पीछे। क्या अगर आपने लूर लूर को कभी शायरी में नहीं इस्तेमाल किया? लूर लूर वो फिरता रहता है हर वेले कुड़ियां पीछे, कभी किसी खुशबाश के पीछे, कभी किसी गमगीन के पीछे। नूर नूर का आप ही का खासा है जनाब। लूर लूर वो फिरता रहता है हर वेले कुड़ियां पीछे, कभी किसी खुशबाश के पीछे, कभी किसी गमगीन के पीछे। उसका अब्बा लगा हुआ है मुफ्त में एवं मेरे मगरे, जैसे इंडिया पड़ा है आजकल तुर्की के और चीन के के पीछे। पीछे। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत, भाई तशबीह क्या उम्दा दी है। कमाल कमाल। उसका अब्बा लगा हुआ है मुफ्त में एवं मेरे मगरे, जैसे इंडिया पड़ा है आजकल तुर्की के और चीन के पीछे। और जो हमारी अमन-ओ-मान की सूरत हाल है उसमें भी कथा कि महबूबा को जब भी मिलने जाते हैं उसके प्यू खरकार से पाला पड़ता है। महबूबा को जब भी मिलने जाते हैं उसके प्यो खरकार से पाला पड़ता है। पहले सड़क पे मिलती थी गुलनार कोई, अब खुद कुछ बम्बार से पाला पड़ता है। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद खान साहब। हम अपने तमाम तर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज ईद के पुरमसरत मौका पर खुशियों को दुबाला करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और एक खूबसूरत महफिल सजाई। नाज़रीन, यकीनन आपने इस जो मुशायरा सुना इससे आप महसूस हुए होंगे और कोशिश करेंगे ईद का मौका है, खुशियों को सेलिब्रेट करें और उसके साथ साथ खुशियों के साथ साथ उन लोगों को भी इन खुशियों में लाजमी शरीक करें जो गमज़दा हैं, परेशान हैं और जो रूठे हुए हैं, उनको भी मनाएं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।